बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में कानूनदान आफ्ताब खान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर मुमताज कानूनदान आफ्ताब खान एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबी नताइज के हवाले से मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। जी आफ्ताब खान ډیره مهرباني تفهیم صاحب چې تاسو راغلی زموږ د کوریج کوي او اصل کې داسې و چې نن په ټوله صوبه کې د وکیلانو الیکشن په ډسټریکټ باز او په تحصیل بار کې په نوخار کې هم دلته کې په تحصیل بار کې هم په بو کې التم الیکشن او دلته کې مو د الله په لوی کرم سره د ملګری وکیلانو په بو کې چې دینو د هغې زموږ پینل وګټله او دلته کې چې دینو زموږ په باري اکثریت سره زموږ الیکشن وګټلو. خو داسې ده چې دا زموږ ورورولۍ الیکشن دی دې کې ګټه بایلات نشته دی. بس بعضې زموږ د وکیلانو ملګرو چې دی نو د خپل د خدمت لپاره د ویلفیر لپاره زموږ د ملګرو ته خپل دغه ورکو ووټ ورکو نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زموږ یقین دی چې دا یوازې الیکشن ګټه نه ده. روان کال زموږ د الیکشن نه پس چې دی نو دا هم ډېر زیات ګران په دې وجه باندې دی چې کوم مقصد دپاره خلکو زموږ د پینل له ووټ ورکړی دی انشاءالله چې دوی په دې باندې پوره ورسي او دوی د وکلاو د بهبود دپاره په دې ملک د آئین د بالادستۍ دپاره د قانون د حکمرانۍ لپاره دوی خپل کردار ادا کړي. دغه یو کال داسې ده چې زه د خپل ملګرو ته وایم چې دا نننۍ ورځ نه وه چې تاسو الیکشن وګټلو په تاسو یو ډېره درنه ذمواري راغلله او چې دا ذمواري تاسو انشاءالله په دې کال کې سرته ورسوئ نو بل کال به هم تاسو انشاءالله ګټه وي کامیابي وي. ډېره مهرباني. حویلی لکھا سے بتائیں کہ لاہور کے نجی ہوٹل میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. منظور احمد شاہین کی رپورٹ کے مطابق پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے وائس چیئر پرسن جہاں رائے منظور وٹو نے لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد بین المذہبی ہوانگی کی ایک بامقصد تقریب میں خصوصی شرکت کی جس کا اہتمام سینیٹر فار لا اینڈ جسٹس کے تعاون سے کیا گیا. اس تقریب میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذہبی ہوانگی کے خیال داس کوہستانی مختلف مذہبی اور مقاطع فکر سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانوں نے شرکت کی. جہاں رائے منظور وٹو نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان مختلف مذہبی کافروں اور زبانوں کا امتزاج ہے اور یہی تنوع ہماری اصلی طاقت ہے. وائس چیئر پرسن نے کہا کہ بین المذہبی ہمانگی صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. نوشہرہ میں شہداء کے ورثہ میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. محمد شراف کھٹر کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ سائز منصبی کے دوران قیام امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے بہادر سپوت کے لاہ و بہبود کے لیے کسی بات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ضلع پولیس سربراہ عبدالرشید نے شہداء کے ورثہ میں 1 کروڑ پیکج اور فری تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب کے شرکا سے بات چیت کی. IGP صوبہ خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے VN کے مطابق شہداء پولیس کے ورثہ میں شہید پیکج اور تعلیمی وضاحت کے چیک تقسیم کرنے کے لیے ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. منڈی کھاریاں سے بتائیں کہ جہاں پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. منڈی کھاریاں روڈ نزد عمر میری جال کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا. آلٹو کار جو سرائے عالمگیر کی طرف سے منڈی باؤدین کی طرف آ رہی تھی عمر میری جال کے قریب آتے ہی گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے جس کے نتیجے میں گاڑی کلٹیاں کھاتی ہوئی روڈ کے دوسری طرف گر گئی. گاڑی میں 2 افراد سوار تھے جن میں ڈرائیور جس کو اسکرین شیشے لگنے کی وجہ سے چہرہ کافی زخمی ہوا اور دوسرا موضوعاتی طور پر بچ گیا. ننکانہ صاحب میں اسٹوڈنٹ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. ڈاکٹر قمر حسین کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب وزرائے پنجاب کی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رانا انصر جمیل سمیت دیگر اسلاف افسران کی تقریب میں شرکت. ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے انٹرنشپ پروگرام مکمل کرنے والے 75 گریجویٹس نے انٹرنشپ لیٹر تقسیم کیے. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں 75 اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کورس بھی کرایا گیا. محکمہ لوکل گورنمنٹ ننکانہ صاحب نے 24 فیمیل اور 51 میل نے انٹرنشپ کورس مکمل بھی کیا. ننکانہ صاحب سے بتائیں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی میں وائس چانسلر کو اضافی چارج سنبھالنا دے دیا. ڈاکٹر قمر حسین کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا نے بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے وائس چانسلر کا اضافی عہدہ سنبھال لیا. پروفیسر سجاد مبین وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا کو 6 ماہ کے لیے بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے وائس چانسلر کا اضافی چارج سونپا گیا. اپنے نئے چارج سنبھالنے کے موقع پر پروفیسر مبین نے یونیورسٹی کو درکار مسائل کو حل کرنے اور اس ادارے کو ایک ترقی یافتہ خوشحال اور منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اپنے وین کا اظہار کیا. بابا گرو نانک یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں اپنے انتظامیہ کی جانب سے متعارف کرائے گئے کچھ اہم اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا. کراچی سے بتائیں کہ منشیات کے خاتمے کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا.
सफदर गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का फैसला यूसुफ फॉर्म में आम मीटिंग मुनक्किद हुई। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में मनशियात के बढ़ते हुए नासूर के खात्मे के लिए यूनियन कौंसिल 4 के दफ्तर में कहा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस इजलास में चेयरमैन यूसुफ 4 डॉक्टर मुराद खान, वाइस चेयरमैन नूर अली खान, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 113 गुलाम कादर खान, सियासी समाजी रहनुमा अदरीस अफरीदी और वार्ड के तमाम काउंसलर्स ने शिरकत की। मीटिंग में इलाके में तेजी से फैलती हुई मनशियात रोश पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने इत्तफाक राय से इस नासूर के मुकम्मल खात्मे का अज़्म का इजहार भी किया। कहा कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास के दौरान इस मसले से मौसर तौर पर निपटने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया। चूनिया में फायरिंग का मामला पेश आया, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर सर्कल चूनिया थाना कंगनपुर के नवाही गांव शामकोट में फायरिंग का मामला, 3 अफराद शदीद जख्मी जिनमें 2 औरतें 1 मर्द शामिल हैं। थाना कंगनपुर के नवाही इलाके शामकोट कहना में फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में सकीना बीबी, जोजा फारूक महरूम उम्र 72 साल, शकील वल्द राना मसूद उम्र 32 साल, सुगरा बीबी, जोजा शकील शामिल। मुलजिम मौके से फरार। थाना कंगनपुर पुलिस जाए मौका पर पहुंचकर मसरूफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मी को THQ रेफर कर दिया गया, ताहम लड़ाई की वजूहात मालूम ना हो सकी। घोटकी में सदर सईद अहमद ने तालका अस्पताल का दौरा किया। खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ प्रेस क्लब घोटकी के सदर MA डहर और PP सिटी के नायब सदर सईद अहमद सदीकी का तालका हॉस्पिटल घोटकी का अचानक दौरा किया। तालका अस्पताल घोटकी के MS सरवर नद से अहम मुलाकात की और शाह लतीफ प्रेस क्लब के सदर मंजूर अहमद डहर और PP सिटी के नायब सदर हॉस्पिटल की नाकस कारकर्दगी पर तबादला ख्याल भी किया। दूर दराज से आए हुए मरीजों को दवायात न मिलने और मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों की गैर मौजूदगी ज़ेर बहस लाई। मुलाकात के दौरान तालका अस्पताल के बारे में डॉक्टर सरवन ने कहा कि हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम कुछ मरीजों को रहीमा खान रेफर करते हैं, इसलिए कि हमारे पास स्टाफ ना होने के बराबर है, यानी कि पूरा नहीं है और डॉक्टरों की कमी है, हड्डियों का डॉक्टर भी नहीं है। मजबूरन हमें मरीजों को रहीमा खान या दूसरे हॉस्पिटलों में भेजना पड़ता है। नुशैरो फिरोज से बताया कि पुलिस का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मोहम्मद अयास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नुशैरो फिरोज में सिंध पुलिस से इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने फिजिकल टेस्ट और दीगर मराहिल में कामयाबी हासिल की है और पास हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ऑर्डर नहीं दिए गए। नौजवान को दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन उनका मजीद कहना था कि हम और H हो चुके हैं, हमारे साथ नाइंसाफ किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत अतीकुर रहमान, अदनान अहमद, असद रिंद और अरसलान पीरजादा, एहसान शाह, अहमद, अदनान मलिक, साहिल और दीगर ने कहा कि बैनर्स और प्रेस कार्ड उठा रखे थे जिन पर मेरिट की बहाली का मुतालबा भी किया था। उन्होंने वजीर दाखिला, IG सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया कि वेटिंग लिस्ट का हुक्म जारी करे, नौजवान में पाई जाने वाली बेचैनी खत्म की जाए। मुस्तफाबाद से बताया कि कल्चर डे के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उज़ैर अकबर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब कल्चर डे के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में 9 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूलों जबकि 10 बॉयज़ हाई स्कूलों ने हिस्सा लिया। तकरीब में पंजाब का रिवायती कल्चर मुकाबला, बेतबाजी पंजाबी तकरीरी मुकाबला, कैलीग्राफी पंजाबी लिबास, बुल्ले शाह समेत देगर पंजाबी सूफी शोरा के कलाम पर मबनी शायरी के मुकाबलाजात का अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मुस्तफ़ाबाद, नंबर 2 मुस्तफ़ाबाद वडाना चड़ेवान लखने की, बेदिया सिरहाली करां सिरहाली खुर्द, जबकि गर्ल्स हाई स्कूलों में दफ्तूर लखने की, ग्रीन कोट सिरहाली करां वेगल ने हिस्सा लिया। तकरीरी मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल करने वाली लाइबा, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ग्रीन कोट से था। बेतबाजी में पहली पोजीशन मुबाशरा वारस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दफ्तूर ने हासिल की। कैलीग्राफी में पहली पोजीशन गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद नंबर 1 ने हासिल की। ट्रेसिंग में पहली पोजीशन सलमान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मुस्तफ़ाबाद ने हासिल की। ट्रेसिंग शो गर्ल्स में मिनाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद ने हासिल की। मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल हजरात में पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए। जी तोनसा शरीफ से बताएं कि फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ वकला बरादरी का गजा पर इसराइली जाहिद के खिलाफ एहतजाज, फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। तोनसा शरीफ में वकला बरादरी की जानिब से गजा पर जारी इसराइली मुजालिम और जाहिद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें फलस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया गया। एहतजाजी रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी तोनसा बार जाहिद सलीम बुजदार और साबिक सदर मलिक जफर तोनसा, सरदार उमरान तनकानी, सरदार दस्तगीर हमायूं और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा रफा खान और अली रजा खान सुकानी, सईद खान रिंद, अनवर शाहीन खान लगारी और दीगर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। चकवाल से बताएं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया।
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सालाना रिजल्ट के मौके पर पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के महकमा तालीम के मेंबरान और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोकनंद में सालाना रिजल्ट के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मोहम्मद सुलेमान, डिप्टी डीईओ कलर कहार रिजवान अब्बास, एईओ भुजाल फरत अब्बास, एईओ बोन मोहम्मद वकास मलिक, एईओ नूर पूरा वालिदैन और ढोकनंद के मौसी शख्सियात, मेहमान खसूसी खान बहादुर, चेयरमैन मोहम्मद रजाक और चेयरमैन मलिक शाहिद नजमी, समाजी कारकुन मलिक अख्तर चट्ठो ने भी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने कौमी तरानों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा ड्रामे भी पेश किए, जिसका मकसद सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल आपके बच्चों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। तकरीब में तमाम शुरका ने भरपूर तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई भी की। शोरकोट से बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक्तदार में आई, मुल्क के चारों सूबों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। अब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की तरफ गामजन है। मरियम नवाज पंजाब में कई ऐसे मंसूबे लेकर आई है, यहाँ पर गरीब को फायदा पहुँचा है। शोरकोट प्रेस क्लब के सदर राना शाहिद महमूद और नायब सदर रजब अली भट्टी खालिद महमूद सरगाना से बात करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहूद के लिए काम कर रही है। गंदम की खरीदारी के सिलसिले में अवाम और किसान के लिए बेहतर मंसूबा लाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने गरीबों का खास ख्याल रखना है। कराची ईद से बताया कि जहां पर ईद उल फितर और रमजान मुबारक के जुल्म और सितम के हवाले से एहतजाज किया गया। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में एहतजाज सरापा माह रमजान और ईद उल फितर पर जुल्म और सितम के हवाले से एहतजाज किया। तनख्वाहों की अदम बहाली पर स्टेट ऑफिस इंक्वायरी ऑफिसर्स और के सरकारी मुलाजमीन पर सरापा एहतजाज। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते और मुलाजमीन की तनख्वाहें बहाल करो की सदाओं से इंकारी ऑफिस गूंज उठे। जेल में कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा करके कब्रों को मस्मार करना शुरू कर दिया गया। डॉक्टर ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गांव बंग्याल में कयामत खेज वाकया बासर चौधरी ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके कब्रें मस्मार करना शुरू कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी का अहले इलाके के दर्जनों अफराद के हमरा भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंसाफ आम करने की अपील की। जेलम के थाना डोमरी के हदूद में वाकया गाँव बंग्याला के रहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी हाजी प्यास ने दर्जनों अफराद के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि गाँव का बासर चौधरी अरशद ने कब्रिस्तान पर कब्जा करके कब्रें मस्मार करना शुरू कर दी है और कब्रिस्तान को अपनी के जमीन में शामिल कर लिया है। गांव के अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा, हमारे आबा अजदा की 100 साल पुरानी कब्रें और इस कब्रों में मौजूद हैं। कुछ कब्रों को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया। नग्याल गांव के अफराद ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर जेलम, डीपीओ जेलम से फौरी अपील की कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। कबीरवाला से बताएं कि खानावाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हसन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के इल्म दोसवियन के तहत PSPR के फेज 1 में आउट सर्विस होने वाले इदारे टेफ के ज़ेर इंतजाम गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कंड सरगना तहसील कबीरवाला जिला खानेवाल में एक पुरवकार तकरीब तकसीम नमाज का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के टेफ के ज़ेर इंतजाम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कंड सरगना में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात और उसनाद से नवाजा गया। शानदार तकरीब स्कूल के सरसब्ज मैदान में मुनक्किद की गई, जहाँ तुलबा और तुलबात, असातिज़ा, वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत टैबलो पेश करके नाज़रीन से दाद समेटी। उनके मासूमाना अदाकारी ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। आरिफवाला से बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद साजिद मुनीर से। अजी मोहम्मद साजिद मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शगुफ्ता जबी और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान की ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन जारी। तहसील आरिफवाला में ऑपरेशन नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक खुद निगरानी कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का एक बार फिर दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। अब मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ। आरिफवाला से म्यूनसिपल ऑफिसर चौधरी अफजल जाहिद और हुसैन एजाज और इनके साथ साथ बल्दिया का अमला नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने कहा, तमाम दुकानदार हजरात तजावुज़ात के खात्मे के लिए आरिफवाला इंतज़ामिया से तावन करें, बासूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। इस काम में सरकारी महकमों में
बल्दिया, रेवेन्यू और पुलिस का अमला भी मौका में पर मौजूद रहा। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की निगरानी में थाना बाजार, रेल बाजार और दीगर बाजारों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। और याद रहे, गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने आरिफ वाला दौरा के मौका पर तजावजात का नोटिस लिया था। जी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आनंद के साथ।